Fine. So again, a formal welcome, formal good morning to everyone. So today we will talk about the solar system. As far as solar system is concerned, since your class 3, you are just going through this term solar system, right? We also know that solar system जो है इसमें planets होते हैं, इसमें satellites होते हैं. I mean it's a very very big, you can say, an open space which is having many of the you can say celestial bodies lying there, right? Celestial and even non-celestial, right? So what exactly the definition of solar system is, that you need to underline also, that the sun, the 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites, right? These are known as the, okay, I'll just go through it. These all form the solar system, right? These all things, the sun, the planets, the satellites. Here we are talking about the natural satellites, right? Then asteroids, meteoroids, these all combinedly form the solar system. And this head of the solar system, or we even call it a solar family, the head of the solar system or the solar family is the sun. सन इसका हेड होता है, बाकी सारे इसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसमें मून भी आता है, राइट? एंड एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, दीज ऑल फॉर्म द, these are the part of the sun family or solar family, being sun as the head, right? So kuch facts which are there mentioned in your book I'll share. Sol in Roman mythology is the sun god. So solar means related to the sun. जब हम solar system कह रहे हैं, it means कि जो system connected है या related है sun से. Fine. solar का मतलब ही हम लोग synonymous ले लेते हैं sun से. If we are talking about the solar cooker, when we are talking about the solar energy, it means everything we are talking about, we are just referring it to the sun, right? So the family of the sun is therefore called the solar system. As mentioned, write down as many as words using the word solar on your own. जैसे मैंने बताया सोलर कुकर है, सोलर एनर्जी है, आजकल तो सोलर वाटर हीटर है, राइट? बहुत कुछ ऐसा है जो सन एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है या उसे रन करता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द सन. व्हाट द सन इज? सन, वी नो दैट इट इज in the center of the solar system, right? So now you need to underline this, that it is a huge and made up of extremely hot gases. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी stars होते हैं, these are made up of hot gases. So sun is not the exception. Sun is also the star, so it is also made up of hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. ये sun ही एक ऐसा है जिसके आसपास सारा solar system जो है हमारा revolve करता है, right? Even our earth receive the heat and light from the solar system itself, I mean from the sun itself, right? It is the ultimate source of heat and light for the solar system. Solar system में जितनी भी चीजें present हैं, they get their heat and light from the sun, right? And the distance of sun is about 150 million kilometers from the earth. सन जो है हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, राइट? लेकिन इतनी ज्यादा हॉट गैसेस से बना है, स्टिल हम लोगों को इतनी ज्यादा हॉट गैसेस फील नहीं होती है. हैड वी बीन देयर ऑन सम अदर प्लैनेट व्हिच इज नियर टू द सन, वी वुड हैव बर्न्ड अलाइव. अर्थ की एक पोजीशन इतनी बढ़िया है, इसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है कि हम सन की हीट और लाइट तो ले लेते हैं, बट इतनी ज्यादा हीट भी हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कि वी आर बर्न्ड अलाइव, राइट? सो इट्स यू कैन से वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द प्लैनेट अर्थ
which is at a very very safer distance, राइट. अर्थ ऐसे डिस्टेंस पे है कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी आती है और ना ही ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, राइट. ना तो ये फ्रीज होता है ना ये बॉईल होता है. फाइन. जो planets those who are very far from the sun, they hardly receive its sunlight and heat, so they are very very cool. But जो हमारी जो planet है, that is at a very safer and very suitable distance, right. So anyhow, if we talk about the planets, we also know that there are 8 planets, right. There are 8 planets. When we people were small ना, तो हम लोगों ने पढ़े हैं 9 planets, right. एक प्लूटो planet होता था जो समय, I mean it was their part of solar system, but now what these are what is there कि ये जो planet है, प्लूटो planet था, वो इतना छोटा planet था कि that it was not qualifying the conditions to be called as a planet. जो किसी भी एक किसी भी चीज को अगर प्लैनेट कहना है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये प्लूटो प्लैनेट बहुत छोटा था तो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा था, तो उसे अब हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. उसे अब सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है. एंड दिस प्लूटो प्लैनेट इज नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ मीन्स छोटा सा, बौना, जैसे हम हिंदी वर्ड यूज करते हैं बौना, right. Anyhow, we are talking about the 8 planets in the solar system. तो distance from sun, कि प्लैनेट सन से कितना दूर है, उस हिसाब से एक सीरीज बनाई गई है. और उस सीरीज में ये प्लैनेट्स जो हैं, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून. और जो प्लूटो था वो नेपट्यून के बाद आता था. इट वाज द 9th planet. But I said कि now it does not, it exists but it is not a part of the solar system, right. So ये जो sequence है ना planets का, ये हमारे लिए याद करना बहुत जरूरी है. I mean we cannot write the name of these planets in anywhere in wherever we want, right. That series is there, that sequence is there, that is to be known by we. But ये आप इसी sequence में लिख सकते हैं इसको, राइट. ऐसा नहीं है कि पहले मर्क्यूरी लिख दिया, फिर नेपट्यून लिख दिया, फिर अर्थ लिख दिया, एंड सो ऑन. नंबरिंग है इनकी. अर्थ जो है 3rd प्लैनेट है, मार्स 4th प्लैनेट है, ऐसे प्लैनेट्स की नंबरिंग है, राइट. सो एक बहुत ही इजी तरीका निकाला गया जिससे कि यू कैन मेमोराइज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन सेंटेंस, राइट. यू हैव टू रिमेंबर वन सेंटेंस. माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका सबसे फर्स्ट अल्फाबेट जो है दैट इज पॉइंटिंग टू द नेम ऑफ द प्लैनेट. लाइक माई का M, दैट इज मर्क्यूरी. वेरी का V, इट इज वीनस. एफिशिएंट का E, दैट इज अर्थ. मदर का M, दैट इज मार्स. देन जस्ट का J, जुपिटर. सो अगर आप एक सेंटेंस याद कर लेते हैं ना, so you are able to memorize the names of the planets in sequence. That is going to be a very very comfortable thing for you people, right. So ये जितने भी 8 planets हैं, these revolve around the sun. Sun जो है that is not at all moving. This is the planets which move around the सन, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. ये आपने क्लास 5 में पढ़ा है ना, 2 मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, राइट. सो व्हेन द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और हर एक प्लैनेट जो है उसका अपना टाइम होता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन. लाइक the planet which will be near to the sun will take less time to take one round, and the planet which is far from the sun, that will take more time. So जैसे मर्क्यूरी है उसे 88 डेज लगते हैं अर्थ के सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर लगाने में. एंड अर्थ जो है, अर्थ को लगते हैं 365 days to revolve around the earth, and when it is a leap year it takes 366 days.
राइट। सो इसे कहा जाता है, या जिस जिस रूट के ऊपर, जिस रास्ते के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं जब वो चलते हैं और सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, दैट पाथ is known as the orbit. That path is known as the orbit. Right? So ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट्स के ऊपर ही जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं सन का। मैं आपको यहाँ पे आपकी पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये जो आपको व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं, these white lines which you can see, this one, ये व्हाइट लाइंस है ना, जिसके ऊपर यू कैन सी द प्लैनेट्स बने हुए हैं एंड सो ऑन। जैसे मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी का पाथ है, ये वीनस का पाथ है, देन ये अर्थ का पाथ है, ऑर्बिट है, राइट। सो ये ऑर्बिट है जिनके ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो चलते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट। एंड एज मेंशन, मर्क्यूरी सबसे पास में है सन के, तो उसको कम डेज लगते हैं। अब ये जो नेपट्यून होगा इसको और ज्यादा डेज लगते हैं, right? It takes a large number, I mean a big number of years to revolve around the sun. Now, as mentioned that in August 2006 till 2006 Pluto was considered a planet, but now it has been discovered that the Pluto is like other celestial bodies and it now will be called as a dwarf planet, right? Then comes the earth. अब हम लोग सारे planets के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम earth के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Because earth is a special for us. हम रहते हैं भाई इसके ऊपर, right? So it is our planet. So earth जो है, as mentioned, it is the third nearest planet to the sun. And size के हिसाब से, ये तो था distance के हिसाब से, size के हिसाब से it is the fifth largest, right? It is the fifth largest planet. And ये जो है it is slightly flattened at the poles. कभी आप लोग खाते हैं आजकल ऑरेंज कितने आ रहे हैं ना, ऑरेंज आप खाते हैं, कीनू आता है वो भी खाते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑरेंज जो है ये टॉप और बॉटम से थोड़ा सा फ्लैट होता है, स्लाइटली, आई एम नॉट सेइंग कि टोटल फ्लैट होता है, स्लाइटली फ्लैट होता है। सेम हमारी जो अर्थ है, दैट इज ऑल्सो फ्लैट एट द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये भी थोड़ी सी फ्लैट है, राइट? और ये जो शेप है अर्थ की, we cannot call it a circular, we cannot call it an elongated, we cannot call it an oval, right? It's a very special shape this planet is having, कि दोनों poles पे थोड़ी सी flat है और otherwise ये circular है, तो इसको particular shape को we call it a geoid. जो अर्थ की शेप है उसे जॉइड कहते हैं। सो जो भी चीज इस ढंग की है कि गोल है लेकिन टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट है, उस शेप को, उस चीज को हम कह देते हैं दैट इट इज अ जॉइड शेप। जॉइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, राइट? नाउ एज मेंशन कि वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, द अर्थ जो है, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इट इज द ओनली प्लैनेट which has the life. And why it is the only planet which has the life? Because many of the conditions which are necessary for the life are present on earth, like atmosphere, hydrosphere, lithosphere, right? किसी भी लाइफ के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड atmosphere. Lithosphere means land, right? Atmosphere means air, and hydrosphere means water. When these all three things will be present, then only the life will be possible. अब बाकी जो planets हैं वहां पर yes, lithosphere is there everywhere, क्योंकि planets जो हैं ये वैसे हार्ड रॉक के बने होते हैं, तो lithosphere is there, right? बट वहां पर वाटर नहीं होगा या एयर नहीं होगी।
अब यू मस्ट हैव हर्ड इट समवेयर कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मून के ऊपर भी पानी है, वाटर है, राइट, बट अगेन दैट इज नॉट हैविंग द आई मीन वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। सो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर these all things are all these three spheres are available, are present, so that's why the life is also there. Secondly, the location, as I said, the location of the earth is at a very safer distance from the sun. So what happens कि earth जो है it is neither too hot nor too cold, right? You have to underline all these features, right? That the earth, it is neither hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival, right? Then is that it has the life supporting gas like oxygen. We also know कि oxygen के बिना तो हम सांस ही कैसे लेंगे, will not breathe, right? So ये तो हमारी life गैस है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, राइट, ये हमारी ब्रीदिंग गैस है. सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. ये किसी और प्लैनेट पे नहीं है, राइट. सो ऑल दीज फीचर्स, presence of air, presence of water, temperature not being too cold, not being too hot, and even the presence of gases like oxygen, these all things make the earth a unique planet of the solar system, right? These all things makes the earth a very unique planet of the solar system. Besides this, one more thing, that earth, we also know it is known as a blue planet. earth को blue planet कहा जाता है. Why? Because it's 2/3 of the surface is covered by water. ये जो 2/3 surface हम कह रहे हैं, it includes the oceans, the rivers, all the water bodies, right? So हमारी अर्थ का 2/3 of area जो है that is covered by water, right? और water जो है वो blue color का होता है, so it's called a blue planet. And besides this, एक और fact है कि जब अर्थ को स्पेस से देखा जाए, अगर स्पेस से अर्थ को देखा जाए तो अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर. फाइन, जब अर्थ को इतनी डिस्टेंस से स्पेस से देखा जाता है तो अर्थ ब्लू कलर की नजर आती है. और वो ब्लू कलर की नजर क्यों आती है? बिकॉज यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट. यू विल बी सरप्राइज कि इतना पानी है, 2/3 सरफेस पूरा कवर्ड है पानी से, फिर भी ये रोज रोज आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि सेव वाटर? बिकॉज द वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ वो सारा का सारा यूज करने के लिए नहीं है. ओशन वाटर जो है वी कैन नॉट यूज इट बिकॉज इट इज अ सैलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर है. ना हम उसे पी सकते हैं, ना हम उसे क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स विद ओशन वाटर, right? So that's why it cannot be used. So हमारे लिए, I don't say कि it is a waste one, but yes, हमारे यूज के लिए वो नहीं आते हैं, right? Fine. So as mentioned कि because of this salinity in the oceans we cannot use that water. एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, that light travels at the speed of around, you can say, 3 lakh kilometer per second, right? अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि at the speed of 3 lakh kilometer per second जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगाती है. तो यहां से अब आप डिस्टेंस जो है अर्थ का और सन का आप बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हैं, राइट? चलो, हमारा सन भी हो गया है. नाउ वी हैव कवर्ड द अर्थ आल्सो. नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट द मून. नाइट स्काई में हम लोग मून जो है नॉर्मली देखते हैं उसको. और जो मून है दैट इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, राइट? हर प्लैनेट के कोई ना कोई नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, कई प्लैनेट्स के नहीं भी होते हैं,
right? So these natural satellites normally they are the called the moons. हमारी अर्थ का एक ही मून है जो हमें रात को नजर आता है. Its diameter is only 1/4 of the earth. जो मून है वो अर्थ से बहुत छोटा है. इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर द एंटायर, यू कैन से ना, ये जैसे आपके ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो है दिस इज द डायमीटर. ये है पूरा डायमीटर. ठीक है. जो 1/4 पार्ट होता है उसको हम क्या, सॉरी हाफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. राइट, मैथ्स में करते हो ना, रेडियस एंड डायमीटर्स. ये है डायमीटर, पूरा सर्कल का डायमीटर है. राइट. तो मून का जो डायमीटर है दैट इज 1/4 ऑफ द अर्थ. मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसे 4 मून्स अगर इकट्ठे करोगे तब जाके अर्थ बनेगी. 1 अर्थ इक्वल टू 4 मून्स. इतना बड़ा हमारे अर्थ का साइज है, और जो मून है वो इतना आई मीन छोटा है, बट हमें बहुत बड़ा लगता है. राइट. रात को जब आप देखते हैं मून को तो बड़ा बड़ा सा लगता है, अभी हमें छोटा तो नहीं लगता. खैर, रीजन उसका ये है कि दैट इज क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू अदर स्टार्स. राइट, इट इज क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स. राइट. इसका डिस्टेंस कितना है? यू कैन सी 3,84,400 kilometer. Right. Its distance is 3,84,400 kilometers from Earth, whereas the distance of Sun is 115 million kilometers from the Earth. Right. Now one thing to know कि आपने रोटेशन सुना पढ़ा था ना पिछली बार की, जब द प्लैनेट्स जो हैं अपने ही एक्सेस पे घूमते रहते हैं, दैट इज नोन एज अ रोटेशन. अर्थ जो है इट टेक्स द रोटेशन इन 24 आवर्स. राइट. तो जैसे अर्थ जो है या जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, तो जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. सो the earth, it revolves around the sun, moon revolves around the earth. Means earth और जो moon है ये घूमते ही रहते हैं. Now हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि why we see only one side of the moon. राइट. हम लोगों को मून का एक ही साइड दिखता है, छोटा छोटा हमें दिखता है, फिर कभी कभी बड़ा हो जाता है, फिर फुल मून आ जाता है एंड सो ऑन. अब आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के सामने खड़े हो, आपके फ्रेंड का फेस और आपका फेस बिल्कुल आमने सामने, आप फ्रेंड का बैक साइड तो नहीं देख पाओगे ना. राइट, बिकॉज यू आर फेसिंग ईच अदर. राइट. प्लस अर्थ और मून जो है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. अर्थ जो है वो 24 आवर्स में अपना स्पिन लेती है. सेम टाइम जो है मून भी लेता है. दोनों ही अपने अपने टाइम पे एग्जैक्टली एक टाइम पे ही घूम रहे हैं. अब आप एक जगह खड़े हैं, आपका एक फ्रेंड खड़ा है, आप दोनों ही आमने सामने खड़े होकर अपनी ही जगह पे घूमी जा रहे हो. आपको हर बार एक ही चीज, आपको एक ही साइड आपके फ्रेंड का देखने को मिलेगा, दूसरा नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो रोटेटिंग एंड दैट योर फ्रेंड इज ऑल्सो रोटेटिंग. राइट. सो यू विल नॉट बी एबल टू say you'll not be able to see the other side of your friend. So ऐसे ही हमें मून का भी एक ही साइड दिखता है, क्योंकि because it takes exactly the same time to complete one spin. राइट. अर्थ और मून जो है आई मीन ऑलमोस्ट सेम टाइम ही इनको लगता है अपनी स्पिनिंग में. राइट. सो अर्थ के आसपास ही 27 डेज में कवर करता है, जैसे कि अर्थ जो है 365 डेज में सन के आसपास चक्कर लगाती है, उसका रेवोल्यूशन होता है 365 डेज का. मून का रेवोल्यूशन होता है 27 डेज का, लेकिन अपने ही एक्सेस पे जो स्पिन करते हैं वो सेम टाइम पे करते हैं. राइट. एंड मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ. मून का पहले आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969. राइट. सो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था 1969 में he had set his foot on moon. Right. Now further facts that the moon does not have conditions that are favorable for the life.
राइट। सो ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, राइट। और ये जो इसमें गड्ढे हैं ना, हम लोग आपने कभी रात को जब देखते हो ना मून, तो आपने ये चीज देखी है कि कई जगह डार्क स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं हमें मून के ऊपर। ध्यान से कभी देखेंगे ना आप, तो यू विल फाइंड सम डार्क स्पॉट्स देयर, राइट। सो डार्क स्पॉट्स जो है ये कौन से हैं, क्योंकि मून के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हैं, तो वो हमें एज अ शेडोज वो नजर आते हैं, पैचेस नजर आते हैं, राइट। एंड फर्स्ट इंडियन हु हैड you can say set his foot on moon was Rakesh Sharma. Rakesh Sharma, he was an astronaut, and he was the first Indian astronaut, and he was working in the Indian Air Force, and in 1984 Rakesh Sharma, he became the first Indian citizen to enter space and the moon also, right. So these are say the facts which are related to the moon. फाइन। सो फर्दर हम लोग जब सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो हियर अभी हमने नेचुरल सैटेलाइट पढ़ा जो कि मून है, और हर प्लैनेट का एक सैटेलाइट होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर सैटेलाइट्स, एक तो सैटेलाइट होते हैं जो नेचुरल होते हैं, मून नेचुरल सैटेलाइट है। फ्यू सैटेलाइट्स आर देयर व्हिच आर ह्यूमन मेड। आप लोगों ने पीछे जब लॉकडाउन था ना, तब बड़े आपने सुने होंगे कोई ना कोई सैटेलाइट्स के बारे में। इवन उससे पहले आपने चंद्रयान है, मंगलयान है, राइट। इसके अलावा कोई एजुसेट है और इनसेट है, ऐसे कितने सारे सैटेलाइट्स हैं which had been, you can say, carried by a rocket. They are placed in the orbit, right. They are placed there in the space, और वो स्पेस की सारी फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन जो है हमारे यहाँ पर लाते हैं। जो सबसे पहला हमारा एक इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, दैट वाज आर्यभट्ट, राइट। आर्यभट्ट जो था सबसे पहला एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था हमारा, राइट। सो अपने कितने सारे ये सैटेलाइट जो हैं आप लोगों ने सुना हुआ है आप लोगों ने इनके बारे में। सो इन टुमारोज क्लास we'll talk about the asteroids and the meteorites.